I think one of the strange things is कि साइम अयूब के ऊपर ओवर रिलायंस हो गई है पाकिस्तान की एंड दिस गाइज ओनली प्लेड लाइक 6 or 7 वन इंटरनेशनल्स और इतनी जल्दी आपकी उसके ऊपर रिलायंस हो जाए तो दैट्स वन फैक्टर एंड दैट आल्सो शोज यू हाउ इंपॉर्टेंट फखर जमान वाज ओवर द लास्ट 4-5 years कि फखर स्कोर्ड रन्स एंड Yeah. चेसेस पाकिस्तान inevitably ended up winning games. तो साइम्स बिकम दैट प्लेयर कि ये बात जानी किधर है और ये खत्म क्यों नहीं, एंड में हाइब्रिड मॉडल ही आना है फिर लगता है. 7 in one of the games. So Australia are going to have good matches. And the other thing is कि ट्रेविस हेड की जहाँ तक आपने बात की, ट्रेविस हेड को कोई खास मसला है इंडिया के साथ. Hello guys, welcome to another episode of Sporting Myths. I'm Ahmed Tariq and I'm joined by Rehan and Waleed as always. थोड़ा देर हो गई हमें आने में, बट आई थॉट इतना ज़्यादा काम हो गया जमा इकट्ठा कवर करने के लिए कि देर आए दुरुस्त आए. तो कल रात को हमने अभी साउथ अफ्रीका का एपिसोड वो मैच देखा है एंड पाकिस्तान सरप्राइजिंगली शोड अप. एट वन पॉइंट इट लुक लाइक कि अभी ये मैच हाथ से ये वाला भी निकल गया है. And then there were like a couple of other things to cover as well, which we'll discuss in detail. So we'll start with the ODIs. Waleed, क्या ख्याल है आपका? कैसा चल रहा था वो मैच? यार आई थिंक इट वाज अ थ्रोबैक टू एन ओल्ड स्कूल मैच. लग रहा था कि हम पुराने एराज में चले गए हैं. 230 240 में मरमर की टीमें पहुंच रही हैं और फिर स्कोर भी उसी तरह. पाकिस्तान शायद ज़बरदस्ती कर रहा था कि यार नहीं 50 ओवर खिलाने ही खिलाने. इट वाज डल ड्रैब और थोड़ा सा बीच में एक्साइटिंग भी हो गया था. I when I look at Pakistan's chase, so I think things should have been way more comfortable. But वो वाली पुराने ज़माने की again score card नज़र आ रहा था where only like 3 people managed to get into double figures. That's a little alarming, but the usual suspects came in and performed. So we've been big fans of Simon on the channel, or kudos to him for showing up big time. Babar sort of supported him in the middle, and then Salman came up big time. जो हम कहते रहते हैं और लोग कमेंट्स में भी कहते हैं कि मतलब why are you supporting him? तो यार अनफॉर्चुनेटली लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ अगर ऊपर वाले साथ छोड़ दें तो उसने और क्या करना है, टेल के साथ ही बैट करना है. एंड आई थिंक he was there and थोड़ा सा comfort था, he took us over the line वरना things were looking quite bad. But yeah, an old school match. Struggling to get to 230, 240 was a sort of an eyesore to watch. Speaking of eyes, I thought के पहले हम बात करेंगे about the new look that's being debuted today. Looking good, Rehan bhai, what happened? थैंक यू यार. मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी. डॉक्टर ने कहा कि तुम अंधे हो और तुम्हें आज तक रियलाइज नहीं हुआ तो ग्लासेस पहनो. तो प्लस आई थिंक आई लुक गुड इन दिस सो आई एम नॉट टेकिंग देम ऑफ. Yeah, you look like a retired professor now. So Don't call me professor. Other than that, it's fine. But क्यों yeah, प्रोफेसर से आपको क्या अच्छा, मसला है? मैच का पता, मैच का क्या ख्याल है? I love you, AT. Waleed was being a poopo there. Anyways, I think मुझे personally, I prefer these matches over 350, 360 scores in one-day cricket as a viewer, because that's just one flow, monotonous flow. के you start the innings off at 7 runs and over, 6 runs and over. You never go above tens at any point in the innings, and you still end up scoring 350, 360. तो मुझे वो monotonous लगता है. I think yesterday it wasn't as monotonous, and credit to the pitch. I think the pitch was, I was reading later, मैंने उस पे check किया कि CricViz की एक pitch rating होती है. So this was significantly a tougher pitch to bat on. पिछली जो साउथ अफ्रीका में पिचेस हैं यूजुअली उनसे, फॉर एग्जांपल जो आपको तीसरा T20 अगर याद है तो पाकिस्तान ने 200 किया और 200 चेस हो गया, तो उस पिच के ऊपर पार स्कोर शुड हैव बीन अराउंड 220 230 एंड वी स्कोर्ड 200 ऑड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिच कैसा प्ले कर रही है तो उस मुताबिक आपका स्कोर होता है. The other thing is, I do agree with Waleed in the fact that Pakistan का जो chase था could have been much easier. I think one of the strange things is कि साइम अयूब के ऊपर ओवर रिलायंस हो गई है पाकिस्तान की एंड दिस गाइज ओनली प्लेड लाइक 6 or 7 वन इंटरनेशनल्स और इतनी जल्दी आपकी उसके ऊपर रिलायंस हो जाए तो दैट्स वन फैक्टर एंड दैट आल्सो शोज यू हाउ इंपॉर्टेंट फखर जमान वाज ओवर द लास्ट 4-5 years कि फखर स्कोर्ड रन्स एंड चेसेस पाकिस्तान inevitably ended up winning games. तो साइम्स बिकम दैट प्लेयर एंड आई स्टिल थिंक कि फखर और साइम की अगर ओपनिंग पेयर हो तो दैट्स ग्रेट फॉर पाकिस्तान गोइंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी. बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीम मैच विनर्स. और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान, आई थिंक जो सलमान अली आगा की इनिंग्स है दैट शुड गिव पाकिस्तान अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस.
for someone to play that innings, usually Pakistan में power hitters जो हैं, Pakistan lacks power hitters in T20 cricket. One international में you Yeah. don't necessarily need a power hitter, because even in the last 10 overs अगर आप stats check करें तो last 10 ओवर में 8 runs per over से ऊपर team score नहीं करती because it's such a long period of the game. So you need someone like an Agha who can carry that innings, hit a boundary when needed, and especially 30 से 40 ओवर दरमियान जब एक एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड द सर्कल है तो you get that added boundary advantage, someone जिसकी इनोवेशन ज्यादा हो, because आगा स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स, तो वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर. आई थिंक आगा की इनिंग शुड गिव पाकिस्तान अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. आई थिंक दैट इनिंग्स फ्रॉम नसीम इज अंडररेटेड. नसीम का जो Yeah, I agree 100%. साथ देना है वो उस पॉइंट के ऊपर, आई थिंक दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड I just am 100% happy with Agha and Naseem and Pakistan winning that game. So great stuff for Pakistan. Pakistan have won, I think, 3 of the last 4 one-day internationals, which is a good sign. Yeah, acha, to not to be the Debbie Downer here, but मुझे जो तुमने एक तो बात की है साइम वाली, दिस वाज, ये मेरे दिमाग में भी सवार थी काफी देर से कि यार एक बच्चे के ऊपर आपने अभी से वो वाला प्रेशर डालना शुरू कर दिया है जिसके अंदर वी सीन अ लॉट ऑफ प्रीवियस टैलेंट्स क्रम्बल अंडर. ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी ओके कि आप एक बच्चे के लाइक 22 साल का बच्चा है एंड वो इस वक्त पाकिस्तान को अकेला कैरी कर रहा है. साइम चल जाता है तो मैच जीत जाते हैं, साइम नहीं चलता तो मैच हार जाते हैं. अब इस वक्त थोड़ा सा आपका ये वाली सिचुएशन बनना शुरू हो गई है. सो दैट्स अ वेरी की कंसर्न. एंड उसके साथ साथ वही बात आ जाती है कि अगर आप फखर को इस चीज के अंदर इंटीग्रेट कर ले, एंड द फनीस्ट थिंग इज कि शोएब अख्तर भी कह रहा था परसों, उसकी स्टेटमेंट आई है कि व्हाटएवर कॉन्फ्लिक्ट्स जो पीसीबी और इसके दरमियान वो है, दे शुड प्रॉब्ली रिजॉल्व इट, बिकॉज ये पीसीबी को ईगो पे लेने वाली बात नहीं है. वो एक वाइटल प्लेयर है एंड वो इस वक्त जो इसका एक्सपीरियंस है ही कैन कैरी थ्रू. अगर आप इसको अभी नहीं बुलाएंगे तो आपको बाद में बुलाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वैल्यू दैट ही ऑफर्स. सो नॉट ब्रिंगिंग इन समवन लाइक हिम इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज आपको नजर आ रहा है कि इस तरह का प्लेयर विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द ओपनिंग आपके शुरू के अंदर. कि एक अगर साइम को अपना अच्छा साथ सपोर्ट मिल जाता है तो फिर लाइक ही डजंट हैव टू शोल्डर द बर्डन अलोन. एंड उसके साथ साथ द सेकंड इशू इज कि आप जो मर्जी कर लो, आपका मिडिल ऑर्डर अभी भी थोड़ा सा मतलब रिलायबल नहीं है. मैं ये कहूँगा आपको नजर आता है बार बार कि चलो आगा इस दफा चल गया है, बट आगा रीसेंट फॉर्म हैजंट बीन ग्रेट. तो आई एम लाइक हैप्पी कि उसने दिखाया है कि उसने अपना वो कर लिया, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल इनिंग. 91 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेला है जो उस वक्त हमें जरूरत थी. बट अगेन अगर साइम ने शुरू में आके वो अपना वो ना क्लच अप किया होता उसके ऊपर, तो फिर शायद हम लोग का ये मैच वहां तक पहुंचता ही ना उस चीज के अंदर. सो वो एक रिलायबिलिटी इशू है, एंड आप बच्चों के ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकते. एंड दैट्स माई की कंसर्न राइट नाउ कि अगर हम सिटी में जा रहे हैं एंड दिस इज योर डिसाइडेड फॉर्मेट, देन यू नीड अ फखर इन देयर जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसको प्रेशर बर्दाश्त करना होता है, ताकि साइम को अकेला एक इतने बड़े स्केल टूर्नामेंट जो अब इतनी देर बाद वापस आ रहा है उसका बर्डन जो है अकेले ना शोल्डर करना पड़े सारा कुछ. Yeah, but look at who's in the batting team. मतलब हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, क्या बाबर एक्सपीरियंस नहीं है, क्या रिजवान की एक्सपीरियंस नहीं है? आई मीन दैट इज योर यानी मिडिल ऑर्डर राइट नाउ. और कामरान गुलाम को तो आज से 10 साल पहले मैंने डिस्कवर करके इस्लामाबाद यूनाइटेड में डाला था. तो मतलब इतने ज़्यादा पुराने पुराने एक्सपीरियंस लोग टीम के अंदर, आपको मिडिल ऑर्डर से और क्या चाहिए? इट्स जस्ट दैट मे बी दे डिडंट क्लिक ऑन द डे. और ये 18 अपनी पीक फॉर बाबर वाली बात करती है और रगड़ दिया मिडिल ऑर्डर को. बट ऑन पेपर ऑनेस्टली थिंक अबाउट इट. सो आई डोंट नो अब्दुल्ला के लिए हेट कहाँ से आ रही, बट आई थिंक अब्दुल्ला एंड Saim have got a good thing going, or they came good in Australia, and you need to give थोड़ा सा time to your new batting lineup to like opening partnership to settle in. I think they've shown in the toughest of conditions कि वो कर सकते हैं, right? दूसरा सवाल आ गया कि अगले दो बंदे जो आ रहे टीम में, रिजवान बाबर, हम इनके बारे में क्या बात करें? मतलब कोई एक्सपीरियंस वाली बात करनी है, कोई फॉर्म वाली बात करनी है? आई थिंक जितनी बातें कर चुके हैं कर, मतलब व्हाट मोर कैन यू टॉक अबाउट? वो जो बात है कि आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस नहीं है, आई जस्ट डोंट बाय इट, बिकॉज दीज आर द टू मोस्ट सीनियर प्लस बैक ऑन प्लेयर्स जो आपकी स्क्वाड में खेलते हैं. हाँ, केजी के बारे में बात करनी है, कर लें. इरफान के बारे में बात करनी है तो कर लें. आई डोंट नो what world do you drop Rizwan and Babar going into the Champions Trophy? It's not going to happen. I I don't think think that's आपको रिजवान या बाबर को दोनों को ड्रॉ
करने Yeah. की ज़रूरत है। आई थिंक आपको बस सप्लीमेंट करना है उनके एक्सपीरियंस के साथ एक और बंदा जिसके पास वो टैलेंट और वो एबिलिटी है, बिकॉज लाइक वी डिस्कस प्रीवियसली 36 ईयर्स 37 ईयर्स एंड वो आके हमेशा वो नॉक खेलता है जैसे कि साइम खेल रहा है। सो अगर आप साइम को एक और बंदा अपने साथ दे रहे हो सप्लीमेंट करने के लिए उसके, ताकि उसको इनिंग्स अकेले जल्दी रश नहीं करने की जरूरत, आई डोंट थिंक नेसेसरली दैट्स अ बैड थिंग। Yeah, I kind of like with Babar. I think it's very interesting. That Babar is, in my opinion, his best format is one day cricket, and I think he is one of the या best one day batters of his generation. And overall, भी उसका one day record देखो तो it's second to none. Actually, second to none. Like the amount of times he scored 50 plus for Pakistan, the amount of games that he's won for Pakistan in one day international cricket. Again, हम लोग confuse हो जाते हैं between formats because T20 format में उसके strike rate पे बड़ी बात आती है, लेकिन one day cricket के अंदर Babar has done pretty well over the last 2 years as well. उसकी average is roughly around 50, and his strike rate also is pretty decent. सो बाबर इज समवन, जो फखर और साइम की बात है ना, फखर और साइम को आपने एज मैच विनर्स, आई एग्री विद एटी, आपको एज मैच विनर्स लुक एट देम एज मैच विनर्स, नॉट रिलायबल एसेट्स कि आपको हर मैच में वो 50 60 70 करके दे रहे हैं, बट जिस मैच में वो स्कोर कर रहे हैं दैट्स बेसिकली वन दैट मैच. एंड बोथ साइम एंड फखर हैव दिस एबिलिटी कि इवन इफ दे स्टार्ट स्लो तो वो एक ऐसा ओवर लगाएंगे कि 15 20 रन वो ओवर में कर देंगे, दे विल कैच अप विद द रन रेट. या नॉट मेनी प्लेयर्स इन पाकिस्तान हैव दैट. I could only think of these two guys जो के can catch up with, if they waste balls so they can catch up with that. And the other thing about या someone like फखर is के फखर 50s तो करता ही नहीं है. यानी फखर करेगा, उसकी अगर पिछले 2 साल के आप निकाल के देखें तो he has 500s and 350s. Like he's scoring more hundreds than या he's scoring 50s, which means फखर जैसा प्लेयर once he gets set तो आपको आपको ऑलमोस्ट गारंटीड है ये मैच आप जीत जाओगे. आई मीन दैट 400 odd दैट पाकिस्तान चेसिंग इन द वर्ल्ड कप, उसमें फखर की जो इनिंग्स थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड is one of the all-time great innings, and no one in Pakistan can do what he did there. Saim and him are the only two people who can play that innings. So I do agree with Waleed's point as well कि middle order में experience की कमी नहीं है. I think the strategically Pakistan की batting approach needs improvement. I think if Saim and Fakhar are not out there in the middle, Pakistan की boundary percentage is one of the lowest in the world. Pakistan की balls per या boundary is one of the lowest in the world. So maybe we can take more chances. And the reason these guys don't take too many chances is because अब पिछले कुछ 6 7 months से पाकिस्तान की अगर आप टीम देखें तो पाकिस्तान की टेल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है. वी डोंट हैव द सेम लग्जरी या ऑफ ऑलराउंडर्स दैट अदर टीम्स हैव. लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके 6th विकेट के बाद आपके सिर्फ बॉलर आना शुरू हो जाएंगे. सो वन डे क्रिकेट इज 50 ओवर लंबा फॉर्मेट है, तो जिसमें अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर या एक्स्ट्रा बॉलर हो तो आइदर वे ऑलराउंडर आपको छठा बॉलर बन सकता है आपका और सातवां बैटर बन सकता है. So I mean या that's one area of concern for Pakistan going into the Champions Trophy. Jahandad को try किया. I think Saim and Agha combined do really well with the ball. So maybe there's a case for adding another batter. Um, so I feel those are things that Pakistan can look at कि आप 4 regular bowlers के साथ खेल लो और Saim and Agha can be that fifth option. But because the Champions Trophy के most Pakistan के matches are going to be in Pakistan, so उसमें spinners are not as effective. By the way, Pakistan is one या of the worst places for spinners to bowl in white ball cricket. It is horrible for spinners. It's not like India, Sri Lanka, or those places. Pakistan में spinners are not half as effective as other subcontinental countries in white ball cricket. अब मुझे अब लोग वो टेस्ट सीरीज ले आएंगे श्रीलंका इंग्लैंड वाली, बट वाइट बॉल क्रिकेट में इट्स ऑलमोस्ट अ ग्रेवयार्ड फॉर स्पिनर्स. लाइक दिस इज वेयर माय कंसर्न स्टेम्स फ्रॉम एज वेल, कि जो तुम बात कर रहे हो कि हमारे पास, मतलब अब मेरा कंसर्न वलीद की बात को काउंटर करने का सिर्फ ये है कि ये अभी 250 था जो हम चेस कर रहे थे, एंड वी बेयरली ग्रॉट लाइक अक्रॉस द लाइन विद दिस. आई एग्री कि पिच मुश्किल थी, ये सारा कुछ इस तरह से, बट एट द सेम टाइम आप जब आपके लाइक व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट टॉप साइड्स इस तरह से, वो आपको 300 भी मार सकते हैं, वो आपको 310 20 30 भी मार सकते हैं, 290 भी हो सकता है. मुझे नहीं लगता कि अगर यही टीम जाती है तो वो पोटेंशियली आराम से 290 300 चेस कर सकेगी. Yeah, I think maybe 80, you're right, but I also think कि पिच इस पिच के ऊपर 290 नहीं होता. पाकिस्तान की पिचेस पे होगा 290 नहीं 350 भी होगा. तो 290 तो आई थिंक पार स्कोर, मिनिमम पार स्कोर है पाकिस्तान की पिचेस पे. या 350 प्लस भी होगा. और पाकिस्तान 350 प्लस सिर्फ तब चेस कर सकता है अगर हिस्टोरिकली भी उठा के देखो, जब जब फखर इज स्कोरिंग रन्स, दैट्स व्हेन पाकिस्तान, दैट्स माय पॉइंट. yeah, that's, you're right about yeah, that, wait, yes. we
what I'm just trying to say is that we have a couple of months to go. इन 2 महीनों में आपका मिडिल ऑर्डर एटलीस्ट मैजिकली रीडिस्कवर नहीं होएगा. आपने पूरी जनरेशन लगा दी है Yeah, behind yeah. backing Rizwan and Babar. तो those guys are set. और I think Babar पे just तो on question mark your नहीं है वलीद. comment, जो आपका आपका जो सवाल है ऑन द लेंथ ऑफ द बैटिंग डेप्थ, मतलब कितनी लाइनअप कितनी है, तो आई थिंक हम इजीली इस अगर मतलब बैटिंग हैवी हमने लोड किया हुआ है अपनी लाइनअप को, राइट? या इससे भी ज़्यादा गुंजाइश है? व्हाट यू सेइंग इज के पोटेंशियली अगर इफ इट्स अ पाकिस्तानी विकेट तो शायद स्पिनर इज वन ऑप्शन जो कि आप यू कैन मे बी प्ले अराउंड विद, और उसकी जगह एक ऑलराउंडर ले आए. So Yeah, the tail Yeah. gets pushed down और फिर Haris is coming at 11th. But yeah. अभी भी my understanding is that we are backing Shaheen and Naseem to come in and finish things for us. जिस Naseem ने आके yet again करके दिया है the last Yeah, match. अच्छा, yeah, I absolutely. wanted to check with you guys on Rizwan. Probably had a horror show like most of the other team when it came to batting. But at one time, South Africa looked pretty decent. And हमने अपनी थोड़ी सी bowling changes probably prepone किए and we brought in spin into the attack. So how much of that game awareness credit goes to the captain over there? I think huge amounts. I also think it was a logical choice because the pitch clearly suited spin bowling. दोनों side की आप spin bowling देखें, clearly suited spin bowling. So I think it was not your typical South African pitch, and that's why you could get 8 overs of Aga, you could get Saim to bowl overs, you could get Abrar to bowl. So आप 3 spinners के साथ तकरीबन आपने 25-26 ओवर करवा लिए, which is more than half the innings. So that's good. On the other flip side of it, South Africa also are a very heavy pace reliant team always. They also use their spin options a lot. So pitch, I think, dictated how it was supposed to be done, and credit where credit is due, that Rizwan did read the pitch. Sometimes we are guilty of not being able to read the pitch and go with a fixed plan. I think Rizwan, in that regard, in with his bowling changes both here and in Australia. अगर आपको वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया T20s की बात नहीं करें, वनडे के अंदर आई थिंक रिजवान वेंट फॉर द किल both occasions, and that's a good sign for Pakistan. His ability to read logical pitch situations has so far been really good, and that comes with years and years of experience of captaining PSL teams, domestic teams, and all of that. So yeah, I think that's a great sign. अगर हम अक्रॉस फॉर्मेट्स देखते हैं तो इज आगा वन ऑफ आवर मोस्ट इन्फॉर्म्ड बॉलर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर मैं Yeah, बात करता हूं तो. yeah, yeah. I think he is bowler. मतलब बेचारे को बहुत ज्यादा उछाला गया है कि नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा, बट आई थिंक जिस तरह पिछले लाइक 3 महीने 4 महीने में द वे ही स्टेप्ड अप, आई एम वेरी प्राउड ऑफ लाइक हाउ ही कम बैक एंड ही इज लुक सॉलिड. मतलब आपने शुरू में आके 3 क्रूशल विकेट्स ले ली थी, 4 विकेट्स, एंड देन यू एंड अप डूइंग लाइक यू एंड अप प्लेइंग लाइक अ मेजर पार्ट इन द चेस, कि आपने आके 82 मारा है 90 बॉल्स के अंदर. मतलब आई थिंक कमाल. I'm so proud of how he's come back and how he's shut everybody up with his bowling and bits of batting, I would say. Yeah, I think टेस्ट में उसकी बैटिंग stood out. Then he's been good with the ball in T20s. मेरे लिए आगा की बेस्ट मोमेंट ये थी. I know Aga personally as well. He's that kind of a person. कि when he won Player of the Match award, and I think this was his first big Player of the Match award, he gave it to Saim. I think that's Aga as a person as well. कि Aga will put his team's preference over his own preference anytime, and that's what he did Yeah. in it. And I think that sends a great message throughout the team के Aga realized कि अगर मेरी 80 is as crucial as Saim. If Saim did not play that innings, then my 80 would not be have been match winning. So I think that camaraderie between the likes of Saim, Aga, Abdullah, these guys, the next gen of Pakistani batters, I think that's really good to see. कि they realize कि team की needs जो हैं, they are above our personal needs. Yeah, but I just want to like a quick word in. I love Saim. मतलब क्या प्लेयर है वो. मतलब आई एम ऑलवेज, एक तो लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन देखने का वैसे ही मजा लैदा आता होता है, but the ease of which he plays and like the confidence, the aura जो इस वक्त वो कैरी कर रहा है ना अपने इसके अंदर,
मतलब कमाल है। आई नो वी बीन टॉकिंग हिम अप, वी बीन हाइपिंग हिम अप कि लाइक लोग जब पीपल वर कंप्लेनिंग कि जी अभी तो इसको चल जाना चाहिए था, ये वो फलाना, एंड लाइक जो भी हो जाए यार, कमाल। मतलब द वे ही कम बैक एंड हिज लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से खेल रहा है इस वक्त। Yeah. Waleed has some, I think, sly remark ready. मैं कह रहा हूँ कि अभी वो यही बैठा हुआ वीडियो देखते हुए कह रहा होगा कि शुक्र है अहमद भाई थे, वरना मेरा पता नहीं क्या बनता। थैंक यू फॉर बिलीविंग। ये वलीद ना, सॉरी वलीद एटी। बकवास genuinely, करवा लो। genuinely यार, वलीद तुम क्या आदमी हो? But just on Saim, I think Oh, here we go again. the 30, I think he 30 odd 20 odd innings लगी हैं उसको अपनी पहली 50 करते हुए T20s में, and entire country and everyone was like कि ओ ये डोमेस्टिक में परफॉर्म कर लेते हैं, इंटरनेशनल में जाके इनसे कुछ नहीं होता। साइम जैसे बैटर को अक्रॉस द वर्ल्ड, जॉस बटलर हो, साइम अयूब हो, कोई भी बैटर हो who's at this age who plays this style of cricket needs time to develop at international cricket. Number one, credit to the PCB के और बहुत पीसीबी में chaos हुआ है, बट साइम को थ्रू आउट दिस पीरियड, नो मैटर हुज बीन द कोच, हुज बीन द मैनेजमेंट, हैज स्टक टू साइम। दैट शोज टू थिंग्स, वन, या साइम इज दैट स्पेशल, एंड टू के एटलीस्ट साइम के केस में स्टेबिलिटी है, बिकॉज यू आइडेंटिफाइड दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट, एंड इट्स जस्ट लाइक आपने बात की कि 22 ईयर्स की एज में उस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि साइम विल गो डाउन एज पाकिस्तान ग्रेटेस्ट वाइट बॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। आई स्टिल बिलीव दैट। आई ऑल्सो थिंक द टीम शुड बी बिल्ट अराउंड साइम। वो होते हैं ना कुछ प्लेयर्स के, आपको पता है कि इसके इर्द गिर्द मैं अगले 5 साल 6 साल अपनी टीम बना सकता हूँ। फॉर दिस जनरेशन दैट साइम, और आपको अपनी टीम उसके इर्द गिर्द ही बनानी चाहिए। सपोर्ट हिम, यूज एंड लेट, गिव हिम फ्रीडम। उसको ना कहो कि भाई अगर वो किसी दिन आउट हो जाता है, नो लुक शॉट मारते, तो अल्लाह का वास्ता है कि उसको नो लुक शॉट खेलने दो। आई लव द फैक्ट कि T20 में वो जो उसने स्वीप पे छक्का मारा नो लुक, उससे पहले उस पर क्रिटिसिज्म नो लुक पे आ रहा था, एंड फाइनली इज लाइक ये लो भाई, मैं तो मारूंगा, जो करना है कर लो। एंड दैट्स द अदर थिंग अबाउट साइम के, वो जो हम बात करते हैं ना कि there's a certain aura around him कि when he walks on the pitch, when he walks on the field, that's not made up, नेचुरली देयर। और कोचिंग जितनी मर्जी आप कर लो, जो साइम के पास चीज़ है ना वो गॉड गिफ्ट है। उसकी जो बैट फ्लो इधर ख़त्म होती है, वो जो शॉट मारता है, एवरीथिंग, यू कांट टीच दैट, यू कैन गेट दैट बेटर। एंड साइम, आई रिमेंबर स्टिल के साइम से एक दफ़ा पूछा था कि साइम हाउ कैन वी हेल्प यू, एंड आई रिमेंबर हिज आंसर वाज के सिर्फ हनीफ मलिक को कैंप के अंदर ले आए, and that's how highly he rates one of his coaches, Hanif Malik. So these guys, like some of the unsung heroes behind the scenes as well. I think Saud Shakil also, when he won Player of the Match award in the World Cup, he dedicated his award to Hanif Malik. Um, so some of these guys, I hope that they get more chance to get involved with other younger players, because the result is there for everyone to see. Saim is an example, या Saud is an example, Agha is an example, all of them influenced by this one guy. So I hope young kids get a chance to practice and work with him. since we've been talking about wonder, this is a great segue to the Champions Trophy. पहली बात तो ये है कि रेहान, इसका हमें क्या हालात नज़र आ रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के, कि अभी तक जो इशू है ये उछाल उछाल के इन्होंने हर जगह मार दिया हुआ है, बट कुछ समझ नहीं आ रही है। एंड समहाउ द थिंग्स टर्न अराउंड ऑन पाकिस्तान, एंड वो कह रहे हैं कि जी अब अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उनको ऐसे फाइन सेट करेंगे कि पीसीबी डूब जाएगा उसके अंदर, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं अब बस आई एम जस्ट रियली कंफ्यूज नाउ कि ये बात जानी किधर है और ये ख़त्म क्यों नहीं। एंड में हाइब्रिड मॉडल ही आना है फिर लगता है। Yeah, I think hybrid model is the only solution to this problem. I think Pakistan gave their stance, but at the end of the day, yeah, financial decisions are really important, and for the betterment of the Pakistan Cricket Board as well. जहाँ पे आपको financial support मिल रही है through ICC revenue and broadcast funds. So I think एक logical decision है, because at the moment this is how where cricket stands at, कि financial power जिसके पास है, and that's unfortunately the reality across most sports these days as well, कि जहाँ पे financial power है, that's where most of the decisions are taken. So I think best possible result for Pakistan would eventually be to go to a hybrid model. I think that's already been done. Part of it has been closed off, which is के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच यहाँ पर नहीं होगा, बाकी मैचेस पाकिस्तान के यहाँ पे होंगे। आई थिंक फाइनल इज समथिंग विच इज़ अप फॉर डिबेट कि वो कहाँ पे होगा, बिकॉज अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ तो वेयर विल दैट बी प्लेड,
नंबर 2 उसके ऊपर ये है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान व्हेन द वर्ल्ड कप इज हैपनिंग इन इंडिया वुड पाकिस्तान गो टू इंडिया. So the answer to that question is Pakistan is already not going to India because that was a joint World Cup between Sri Lanka and India. So only Pakistan India was supposed to take place in India. Other matches were not supposed to take place in India. So that match will also be moved out of India most probably. But I think उसमें Pakistan hasn't gained much because already अगर आप already श्रीलंका में खेल रहे थे अपने बाकी matches, so I don't think that counts as anyone compromising. So there's that. Hopefully I think पाकिस्तान में जितने मैचेस हमें मिले great. I think the best financial deal that Pakistan Cricket Board can get out of this is good for Pakistan cricket. That's my point of view. I know people will say कि patriotism and all of that. I agree with that, but reality has to sink in, and you have to take the best decision in the best interest of the future of your cricket compared to the rest of the world. That's Agreed. how I see it. यार मेरा उसमें वही मसला आता है कि आप जो मर्जी कर लो, फॉर सम रीज़न इट विल नेवर बी इनफ फॉर सम पीपल, बट अगर हम लोग अपना स्टैंड लेते हैं इस वक्त एंड वी एंड अप जस्ट लूजिंग मनी आउट ऑफ दिस, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं रखा हुआ है इस वक्त. Yeah. बट खैर वो तो मतलब नाइदर हियर नाइदर देयर. बट हमारी जनरली तैयारी, लाइक डू यू सी द टीम शेपिंग अप? लाइक वलीद, तुम्हारा क्या ख्याल है? अभी एक हमने देखा है, अभी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी आनी है हमारी. हाउ डू यू थिंक वेयर गोइंग प्रेप वाइज ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हाउ आवर Isn't टीम्स? आई थिंक इसके साथ वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ हमें टेस्ट रह गया, एंड देन देयर इज वन मे बी ट्राई नेशन सीरीज जो कि हम साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ कर रहे हैं पाकिस्तान में. या सो आई थिंक दिस इज इट. ओडीआईज अभी साउथ अफ्रीका के साथ करेंगे, फिर दैट ट्राई नेशन सीरीज एंड दैट्स अबाउट इट. फिर टूर्नामेंट होगा. आई थिंक more or less we know that the squad is अब settled in है, अब इससे ज़्यादा changes नहीं होंगे. Maybe आपको केजी, इरफान, अबरार के स्लॉट पे सरप्राइजेस मे बी मिल सकते हैं या ऑल्टरनेट्स आ सकते हैं, बट आई डू थिंक दिस इज द स्क्वाड. आई आई डू होप कि हमारा एक अच्छा सा टूर्नामेंट हो, बिकॉज there's been a dark cloud around the Champions Trophy overall, which you guys sort of already covered. And then I think the PCB needs or needs a win in terms of a good tournament showing, because PCB के इर्द गिर्द काफ़ी डार्क क्लाउड्स घूम रहे हैं काफ़ी देर से, एंड इन द बैकग्राउंड ऑन द कोचिंग डिबाकल एक और दफ़ा न्यूज़ आई which was brewing for quite some time, where Jason Gillespie has now come out, और उन्होंने आके सारी जो घर की बातें थी वो बाहर वालों को आके मोहल्ले वालों को बता दी है कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा जाती हुई है, मेरे हाई परफॉर्मेंस कोच के साथ भी बहुत जाती हुई है, एंड दीज गाइज डोंट से व्हाट दे मीन. मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट का ना अलमिया यही है कि whoever works in this space has always got a love-hate relationship with the team. मैं मिकी को देख रहा होता हूँ, and I think there's one guy जो कि इस तरह मतलब इतना impassioned होके हर प्लेयर की हर चीज़ पे कमेंट कर रहे होते हैं अभी भी. तो you can clearly see that love-hate cricket. Even if things break apart, you still are really deeply attached to what's going on in the cricket. Kind of like जो हमारे साथ हो रहा होता है जब भी हम एपिसोड पे आते हैं और इसके अलावा भी बात करते हैं. या इस पे आई थिंक जेसन गिलेस्पी ने जो आपने कहा कि मोहल्ले के सामने सबको बोला, आई थिंक पूरे मोहल्ले को पहले ही पता था बिकॉज दीज वर नॉट हिडन सीक्रेट्स और एनीथिंग लाइक दैट. आपने मिकी आर्थर की बात की, इवन गैरी कर्स्टन व्हेन ही लेफ्ट, जेसन गिलेस्पी व्हेन ही इज लेफ्ट, they all have great things to say about Pakistan's players. And you realize when these things like this happen to these guys, कि Gary Kirsten, Jason Gillespie, Mickey Arthur, and so many other examples, तो आपको ये रियलाइज होता है कि इनमें से किसी को प्लेयरों से तो मसला था ही नहीं. तो प्लेयर्स के ऊपर भी स्टेबिलिटी का कितना इफेक्ट होता है कि अगर आपका बोर्ड स्टेबल हो तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेज उससे भी ज़्यादा स्टेबल आएंगी. अभी तो वो बात है कि डिस्पाइट हाउ वी फंक्शन, and this is not about this management alone, overall Pakistan की history के अंदर I was also part of a very unstable management as well, so I would take the blame here as well. But structurally इतनी इतनी ज़्यादा uncertainty होती है around the team कि no one feels settled, and that reflects on how we play. And then we say, why are we a mercurial team, why can't we be more consistent? The team can't be consistent if we are not consistent as a cricket board.
So there's that, and it's unfortunate what's happened. I think इससे पहले एक पीसीबी ने स्टेटमेंट भी दी थी कि जेसन गिलेस्पी के बारे में खबर गलत है कि वो साउथ अफ्रीका सीरीज में कोच नहीं होंगे. ही डेफिनेटली बी आर कोच इन द साउथ अफ्रीका सीरीज. ही इज नॉट. So there's that. But like I just don't understand कि we keep making these changes and then we expect कि results will change as well. अब आकिब जावेद is in charge and he's been called in. पहले उनको कहा interim white ball coach, अब उनको कहना interim red ball coach. प्रॉब्लम ये है कि तो उनको interim all format coach कहने में क्या मसला है, और interim निकाल दो. मेरा पॉइंट ये है, आकिब जावेद्स डन अ गुड जॉब, लेट हिम बी, गिव हिम अथॉरिटी. आई थिंक एनीवन, आई लाइक पर्सनली आपको कोई बंदा पसंद हो या ना पसंद हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट जिस बंदे को भी लेके आ रहे हो यार, उसको एटलीस्ट एक्सटेंडेड रन दो. एक्सटेंडेड रन देने के बाद उसको जज करो. हम तो विद 1 सीरीज 2 सीरीज के बाद उठाकर फेंक देते हैं. गैरी कर्स्टन वाज सपोज टू बी 3 साल का प्रोजेक्ट. गैरी कर्स्टन ने एक वर्ल्ड कप किया, वो बाहर. जेसन गिलेस्पी वाज सपोज टू बी लॉन्ग टर्म फॉर्मेट, उसने एक सीजन किया, एक सीजन के बाद बाहर. सो यू नो you long term Pakistan cricket needs a bit more stability. क्या ये आई थिंक मुझे पाकिस्तान करवा इज दो, अल्लाह का वास्ता है, इससे पहले कि वी गेट इन ट्रबल. सो प्लीज 80. इज पाकिस्तान द चेल्सी ऑफ लाइक द मिड 2000s, जो हाँ वो जो 2008 से 2013 का पीरियड था, जिसमें एक सीजन के अंदर 3 मैनेजर्स आते होते थे उनकी, यार, उसमें भी एटलीस्ट ऊपर तो एक ही बंदा था वो ना, जीत जाते थे. और ऊपर तो एक ही बंदा था ना. हाँ, ये भी है. हाँ, तो एज इन लेकिन रोमान वाज क्या देयर. क्या यहाँ पे तो पिछले 3 साल में 4 साल में आई थिंक 5 बंदे चेंज हो चुके हैं, तो या यप. सो हम लोग ने ये बात ना पहले भी डिस्कस की हुई है कि व्हेन समबडी न्यू इज कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और वो इतनी टॉक्सिक है और ब्रोकन है, द वे आवर क्रिकेट बोर्ड इज के लेगेसी अपॉइंटीज हैं दैट डोंट रियली लाइक ईच अदर, they do come in and they will spend that time to understand who's a good fit, and if they're a good manager then eventually they'll take a call, or they're a good leader, sorry, they'll eventually take a call, or they'll put in people that they respect, put in people that they trust, and they will tell them, hey, this is what we want to be doing as an organization. So ये तुम्हारा mandate है, इसमें तुम operate करो. And naturally, जब भी BCB में भी changes हुए in the last year, so you were waiting for for those changes to come in, and maybe they are now. So, but the problem is when you put in that change, so you should be really sure कि यार ये मैं this person I'm backing. If you don't want to back that person, तो फिर पिछले वाले को चल रहे हैं, right? And when you put them in, तो मतलब I don't like this in interim वाला charge. When I look at Akib, so uh, Emirates की वो coaching appointment थी very early in his coaching career, and then he spent almost a decade with Lahore Qalandars, and he's seen Qalandars through all the highs, all the lows. So and of course players भी रहे हुए हैं, stellar part of our lineups in the 90s. So he understands what is required for success. If he's the one that we need to get behind, we'll all get behind him. बट आई थिंक वो भी थोड़ा शॉर्ट चेंज फील करते होंगे जब वो उनको इंटरिम के टाइटल मिलते होंगे, एंड वो भी इंटरिम जोड़ रहे हैं, अब उनके लिए मसला हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है कि आपने डिसीजन ले लिया एंड यू डोंट लाइक इट, सो यू हैव टू स्टिक बाय इट फॉर द होल ईयर. अगर इफ समथिंग इज कंप्लीटली नॉट इन लाइन विद व्हाट यूर डूइंग, तो एक दुनिया का बड़ा अच्छा क्लब है यूनाइटेड, उसने भी अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर को रख के 4-5 महीने में निकाल दिया है, विच obviously makes no sense to me. But you can decide to do those sorts of changes as well. So लेकिन interim का title is like a मतलब थूक है, मुझे नहीं समझ आई. ये इसने पूरी बात सिर्फ ये बताने के लिए की थी कि ये पूरी बात सिर्फ इस वजह I से don't know what's more horrible कि Pakistan cricket is like United or United is like Pakistan cricket. Yeah, I was about to और say you're not giving a great example of success. So I'm going to put the Bruno Fernandes in the Pakistani kit वाला जो था ना, वो right here at this point. हालात अगर आप दिखाने के editing लिए. करें तो all the best. No, but I think, by the way, speaking of unrest, it's also important to go towards the BGT, जो Border Gavaskar series चल रही है हमारी इस वक्त, and very interesting events happening over there. पहला टेस्ट मैच जो था, इंडिया ने आके कमाल खेला एंड क्लीन स्वीप कर दिया, एंड उसके बाद now this is all based on
जो मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ, मैं खबरों में देख रहा हूँ और जो मुझे लाइक रील्स वगैरह में नज़र आता है, सो बिकॉज आई एम नॉट इंटेग्रली इन्वॉल्व इन इंडियन पॉलिटिक्स, सो मुझे नहीं पता, बट जैसे ही रोहित शर्मा वापस आया है तो मूड जो है बिल्कुल फ्लैटलाइन कर गया, एंड ऑल ऑफ द प्लेयर्स वर ऑलरेडी अपसेट, एंड देन देर इज कंट्रोवर्सी उसके अंदर के, लाइक सबकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, हिज फील्ड सेटिंग वाज वेरी डिफेंसिव। जब वो ट्रैविस हेड वाली जैसे जो इनिंग्स थी, सारे कहते हैं कि इसने इनेबल किया है हेड को इस तरह खेलने के लिए, जबकि उसको आपने अग्रेसिवली करके आउट कर सकते थे। एंड कि इस वक्त टेस्ट में इंडिया हैज बिकम अ वन मैन टीम जो सिर्फ बुमराह चला रहा है। अगर बुमराह ना होता तो इंडिया किसी को भी आउट ना कर सकता। लाइक देयर सो मेनी नैरेटिव्स फ्लाइंग अराउंड, बट आई थिंक टेस्ट ड्रॉ हो गया है, सो मे बी सम लाइक रिप्रीव फॉर द इंडियन टीम, बट जनरली द सेंटिमेंट एंड द एंगर, जो इतना गुस्सा है इस वक्त लोगों के अंदर कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लोग तो कह रहे थे कि इस टेस्ट मैच खत्म होते ही उसको शर्मा को रिटायर कर जाना चाहिए, कि ये इसके वो है। Yeah, I think there are two, three important aspects to this. वो Number एक one, रेहान, एक गंभीर का भी बाय द वे कि दे हेट गंभीर एज वेल, लाइक ये भी एक और स्टोरी साइड पे है कि जी उनको भी अपने कोच से बहुत ज्यादा मसला है इस तरह से। अच्छा, बाय द वे, इंडिया में अगर आपको कोच से मसला होगा ना, तो वो प्लेयर्स हैव इनफ पावर कि वो इवेंचुअली उसका कोई रिजल्ट निकल आएगा. आई नो दैट द कोच इज बैक बाय जे शाह एंड एवरीथिंग, बट प्लेयर्स हैव अ लॉट ऑफ पावर इन इंडिया. नंबर वन. नंबर टू ये कि जब आप मैच जीत रहे होते हो ना, तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छी लगती है. तो इंडिया पहला टेस्ट मैच जीता, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी. जब मैच हारे तो बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं थी. जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो सका टेस्ट मैच, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि देयर वर लॉट ऑफ ओवर्स लॉस्ट टू बैड लाइट, to weather, to rain. So we couldn't get a result out of it. Bumrah obviously exceptional throughout the series, but Australia कोई, I mean, कोई बांग्लादेश के अगेंस्ट तो नहीं आप खेल रहे. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम इन ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड. एंड yes, India have won the previous two series there, but Asian teams doing well in Australia is a very rare case. India are the only Asian team who does well in Australia in Test cricket. I mean, Pakistan को देख लें, 96, 97 onwards, Pakistan has not even won a test match, let alone win a series, test series there. Sri Lanka similarly don't have a good record in Australia. So India का recent record has been pretty good in Australia, and obviously Australia are going to win some test matches at home against any team. I mean, remind me the last time Australia did not make the opposition struggle against them at home. Yes, India won the previous series. उसमें भी India were all out for 36, 37 in one of the games. So Australia are going to have good matches. एंड द अदर थिंग इज के ट्रेविस हेड की, जहां तक आपने बात की, ट्रेविस हेड को कोई खास मसला है इंडिया के साथ. हाँ हाँ, मैं ये लेट मी हाईलाइट दिस, आई Yeah, हैव द, सो ट्रेविस हेड बेसिकली अगेंस्ट इंडिया अगर हम बात करते हैं ना, सो द टॉप सिक्स, ख्वाजा मैक्सवीनी, स्मिथ, मार्श वगैरह सारे मिला के, दे हैव 391 रन्स yeah, अगेंस्ट इंडिया, yeah. एंड इन 944 बॉल्स एवरेज सबकी 19.6 बनती है, एंड स्ट्राइक रेट 41 है. ट्रेविस बाय हिमसेल्फ हैज 392 रन्स, एक रन ज्यादा है छह लोगों को कंबाइंड, इन हाफ द बॉल्स 415 with an average of 98 and a strike rate of 94.5. Crazy. उसको he hates them. I mean, वो वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर the outstanding team in the World Cup 2023 का वर्ल्ड कप, won every Yeah. single match, went into the final, got the right breakthroughs at the right time. Travis Head comes in, plays and misses a few balls, and then just, you know, makes the He, match by the way, completely had easy. 4 golden ducks before this match. इस Yeah, मैच से पहले he had 4 golden ducks. yeah. I think और वो Travis Head, I think, has improved drastically over the years. हमारे चैनल पे एक शॉर्ट भी हमने इसके ऊपर की हुई है. If you can go and look at that over how he's improved. But Travis Head is a perfect example of someone like why Gilchrist was so successful in Test cricket, coming down the order 6-7 के ऊपर आके एकदम दूसरी टीम को लगता है कि we are on top, and this guy just scores at 90 plus, takes the match completely away from you. I think the other thing about Travis Head which is scary is कि बाकी कोई बंदा आता है ना, तो आपको लगता है कि इसको कंटेन तो कर लेंगे ना कम से कम, अगर आउट नहीं करेंगे. वो प्रॉब्लम ये है कि वो 2-3 घंटे मैच का खेल जाए तो मैच वो साइड पे लगा जाता है. तो yeah. दैट्स वन थिंग. एंड द अदर फ्लिप साइड ऑफ इट इज कि रोहित शर्मा ने अटैकिंग फील्ड नहीं रखी. वो अटैकिंग फील्ड रखता तो हो सकता है 94 की जगह 120 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा होता. समटाइम्स ये अटैकिंग डिफेंसिव जो है ना, इट्स सब्जेक्ट टू हाउ द बैटर इज प्लेइंग. अगर एक बैटर का ज्यादा चांस है कि वो डीप मिड विकेट पे आउट हो और आपने मिड विकेट अंदर रखी हुई है,
So I don't think that's attacking captaincy. I know Sharma's made a lot of mistakes as a captain, but let's be honest about it. Australia are not an average team. They are actually one of the best teams in the world, and their bowling attack, Hazelwood, Cummins, Stark, all of these guys are generational. यानी they are greats of Test cricket. It's not like कि उन्होंने अभी start किया है. Yeah. तो I think yeah, I do think like अच्छा so इसमें one of the things was कि like India were very eager to avoid the follow on obviously because उनको उस चीज़ की टेंशन थी but मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया लेना भी था because Hazelwood जो था वो तो with he got injured and Australia probably didn't do a good job of handling him because वो 2 दिन पहले खेला भी नहीं है मैच से उसने ट्रेनिंग भी नहीं की एंड दे ब्रॉट हिम स्ट्रेट बैक इन बिकॉज उसका वो कमर का इश्यू था फिर अब वो कास्ट ट्रेन के साथ चला गया है बाहर yeah. सो वो कभी भी उस चीज़ का डर नहीं था बट there's general sentiment amongst Indian fans ऐसा लग रहा है कि लाइक अब वो कह रहे हैं कि कोहली का टाइम भी पूरा हो गया टेस्ट के अंदर रोहित का भी टाइम पूरा हो गया उसके अंदर सो दे प्रॉब्ली नीड टू लाइक अब इनको निकाल देना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम लाइक काफी That's an हो गया argument that है can be had. That's an argument that can be had, but think वो इस सीरीज के बाद वो देख सकते हैं कि let the series complete and then they can make a decision on this. I think the part of the anger is that India lost 3-0 to New Zealand at home, and it's a carry forward of that. And also या after the first test, the entire narrative was कि how it's possible कि India might even whitewash victory in BJT. या So I think the first test match played a huge role in building up those expectations and the previous two series in Australia. But let's be honest about it, this series was always going to be close. It wasn't going to be one way. Australia भी सारे मैच ना जीता, इंडिया भी सारे मैच ना जीता. यार पता है न्यूजीलैंड वाली सीरीज में नैरेटिव ये था कि ये लोग खेल रहे हैं कीपिंग इन माइंड के आगे ऑस्ट्रेलिया आना है तो ये तो हम इसलिए हार गए एंड लाइक हम लोग उस चीज की तैयारी कर रहे थे और ये इस वजह से होम निकल पे गए तो नहीं बट हारना ऑस्ट्रेलिया चाहिए को था पहला ना. मैच इन्होंने हराया जिस Yeah. तरीके से हराया एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई हम इनको हरा के जाएंगे लाइक मोस्ट पीपल वर कॉन्फिडेंट दैट दे वर गोइंग टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया व्हिच Yeah. आई फील वेरी सरप्राइज्ड बाय बट लोगों की कहानी और ये लोगों की सोच जो थी वो यही थी पहले मैच अभी के भी बाद they तो can, वो अभी भी they can, but they can't या expect the entire series to go that way. Yeah, that's true. But it's one of those series that I've enjoyed watching quite a bit. Like जितनी controversy, जितनी लड़ाइयाँ, जितनी गाल गलोच and then सब कुछ हो रहा होता है फिर पैट कमिंस आता है और सबको मार के चला जाता है मतलब वो एंड में वही सुपरमैन शिट जो उसकी होती है ना कि लाइक ही इज ऑलवेज ऑन दैट वो कि अगर किसी से कुछ नहीं हो रहा हेजलवुड चला गया कोई मसला नहीं चलो अब मेरा टाइम आ गया है अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं क्या और पैट कमिंस आता है वो बस मतलब पता नहीं क्या आदमी है यार मुझे नहीं समझ आती उसकी ये मैंने एक्सप्लेन तो किया, ग्लासेस उतारी भी हैं, वापस भी लगा रहा हूँ. वलीद, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दें. मैं समझ गया था आपकी बात को. I wanted to understand from you guys. Historically, Ashes were the series, the premium series. Uh, okay, that's a no. Abhi Pakistan India was the premium series. I don't know. I mean, Okay, yes, Australia, Pakistan. England, Ashes, yeah, whatever, man. Say it. So is BGT the pinnacle right now? And nothing even comes close, right? Yeah. Yeah, I think historic reasons here say everyone will bring in the Ashes, and let's be Hmm. honest about the Ashes. For a period of time, Ashes was absolutely one-sided and boring. The Hmm. entire 90s until England won that home series, that one of the greatest test series of all time, the Flintoff Peterson Wari series in 2003, 4, 5, Yeah. I think. Until that, तो एमएसएन वो में वन आया साइड था थी ऑस्ट्रेलिया की साइड के ऊपर इन द 90s एंड यस बिफोर दैट अगर आप 1900s अर्ली 1900s वगैरह लेके आना चाहते हो तो आई एम सॉरी मैं तब पैदा नहीं हुआ था तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बट राइट नाउ अगर आपको टेस्ट सीरीज देखनी है तो द राइवलरी इनके दरमियान में क्रिएट हुई है ओवर द लास्ट 20-24 years. It's crazy because it's almost like Australia were these bullies who dominated world cricket for so long, had all the financial muscle as well along with England, and suddenly India became this financial superpower in cricket, and also had this team of non-apologetic players. And one of the things that I really miss about Kohli, मैं कल सोच रहा था कि कोहली इस tactically he might not have been a brilliant captain, but कोहली की एक चीज थी कि I remember he was playing a match against West Indies. वो उनका बॉलर था, वो आउट करके ना अपने हाथ पे इस तरह साइन करता था, नाम लिखता था कि जिसको उसने आउट किया. तो कोहली ने उसको चौका मारा, कोहली ने अपने बैट पे साइन किया, कोहली ने अपने बैट पे साइन किया. फिर कोहली की some of the press conference he had in Australia, it was very या Australian of what Kohli did.
And the only other person who I can think of who did this to Australia was Brian Lara back in the 90s and early 2000s. Other than that, no player has ever stood up to them like that. And now the entire Indian team stands up to them like that. या I think that's why this series has taken a मतलब special समटाइम्स narrative. आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाता है बिकॉज सिराज ने जो कर रहा था और अरे उसे 140 के बाद सिराज के तो बेचारे से किसी ने 140 की हो तो उसको कहना चाहिए वेल प्लेड. वो तो आई थिंक वाज टू मच. मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि या आप एक जो इन्फॉर्म प्लेयर को आप बार बार लाइक अगर लाइक जो नहीं चल रहा और आपने उसको चला दिया है सिर्फ उसे लड़ लड़ के तो या देर इज अ डाउन साइड ऑफ लाइक दिस मे बी बट मुझे but सिर्फ it's मजा ये आता है कि लाइक देर इज जेन्युइन डिसलाइक टूवर्ड्स ईच आई अदर लव लाइक इट. आई लव वाचिंग इट. उनको नहीं पसंद लाइक आपको नजर आता है कि यार मुझे ये बंदा नहीं पसंद मैं नहीं खेलना मैं इसको मार दूंगा मैं इसको चलने नहीं दूंगा मैं इसको मार दूंगा और वो इट्स सो विजिबल आई थिंक इट्स एवरी द विकेट शोएब अख्तर स्टाइल ऑफ क्रिकेट. या या pretty much like मतलब ये मेरा we're not just a team ये मेरे दुश्मन है सारे और मैं इन सबको मार दूंगा मतलब वो वाली मेंटालिटी है इसमें दिलेर है, जिगरा है. बट इफ यू लुक एट द रिजल्ट्स तो चार सीरीज बैक टू बैक जीतते हुए इंडिया आ रही है अंदर. सो हाउ इज इट अ कंपटीशन, या फिर इज दिस इट, मतलब दे आर द कंपटीशन, इनके अलावा कोई करीब नहीं लगता. ऑल्सो हिस्टोरिकली भी एज वेल द नंबर्स आर क्वाइट वियर्ड. यू वुड नेवर एक्सपेक्ट दिस अक्रॉस 26 years that ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 या 5 दफा जीती है, एंड देन इंडिया हैज वन लाइक 10 times. दिस इज क्रेजी. यार आई थिंक दैट्स द थिंग ना. वो शिफ्ट आया ना. उससे पहले तो अनइमेजिनेबल था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराएगी. आप टेस्ट की बात करें इवन वनडे में दैट धोनी सीरीज व्हेन धोनी बिकेम कैप्टन एंड वो ट्राई सीरीज थी उसके अंदर इंडिया वन द ट्राई सीरीज के उस टाइम बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल होता था इनका. तो इंडिया वन दैट सीरीज. आई थिंक दैट्स वेयर द शिफ्ट हैड स्टार्टेड. उससे पहले एक सीरीज हुई थी विच वाज ड्रॉन इन ऑस्ट्रेलिया. इंडिया और स्टीव वॉ की लास्ट टेस्ट सीरीज थी. Um, उसमें आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम नहीं खेली थी बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैड अ लॉट ऑफ इंजरीज. आई थिंक द मेजर टर्निंग पॉइंट वाज कि जो पिछली सीरीज थी उसमें जो गैबा टेस्ट था द लास्ट टेस्ट इंडिया हैज ऑलमोस्ट प्लेइंग विद देयर सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग लाइनअप सेकंड स्ट्रिंग टीम गैबा जहां पे ऑस्ट्रेलिया अपनी सदियों से कोई मैच नहीं हारा हुआ था एंड इंडिया विनिंग देयर. आई थिंक दैट वाज अ yeah that's शिफ्टिंग the major shift I agree um, but I mean, for Australia is now getting back lost glory against India. For India is we are now the big things in cricket, so we need to keep these guys below us. So I think that's why the series has become even more magnified. Um, and all every year Test Championship के final के लिए these two teams are almost near the top two. India I yeah think दोनों खेला है. इस साल भी जो आई थिंक इन दोनों में से जीतेगा विल बी डेफिनेटली गोइंग इनटू द फाइनल. इंडिया का तो अब बहुत मुश्किल हो गया है बट ऑस्ट्रेलिया विल बी देयर. सो आई मीन दीज आर द टॉप टू टेस्ट टीम्स. एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया का अगर आप कह रहे हैं कि 4 सीरीज इंडिया से आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का कोई एशिया में इतना कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है. एशिया में वो कोई इतने मैचेस नहीं जीतते. दे आर होम yeah basically most of these teams have built test teams around home form rather than away form. भाई वो अगर So 4 दफा हारे हैं तो 2 दफा ऑस्ट्रेलिया में हारे होंगे ना. मैं वो तो बात कर रहा हूँ बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो दैट्स वेयर द शिफ्टिंग कम्स इन ना कि इंडिया विनिंग द लास्ट टू सीरीज इज स्पेशल. वेरी वेरी स्पेशल. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर आप मुझसे पूछें ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज विन सो आई थिंक द लास्ट सीरीज दैट इंडिया वन इन ऑस्ट्रेलिया इज प्रोबेबली वन ऑफ द टॉप थ्री टेस्ट सीरीज विन्स ऑफ ऑल टाइम. chalo I think we're going to just like wrap this up but I need your predictions for the next ODI यार ये क्या बायलैटरल ओडीआई सीरीज ले आते हो यार भाई. कोई अच्छा चलें, छोड़े भाई यार. ये मुझे भी बताएं like गुजरावाला में चैंपियंस ट्रॉफी के कितने मैचेस हो रहे हैं? कोई भी नहीं. ये क्या बात हुई? ये कोई भी नहीं. ये तो सब लोगों को मांगने चाहिए था ना मैचेस के. अगर इतनी बड़ी सीरीज हो रही है 30 साल के बाद तो हमें भी थोड़े थोड़े मैचेस दें. Where are the पहले matches अपने happening मुल्क this में ले time? आओ फिर शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना भाई. ओ आ भाई गए मुल्क में गुजरावाला यार, और पहुंच कितना रहा है मुल्क में इसमें लेके आए? और कितना मुल्क में लेके आए? क्या हो गया? नहीं भाई मैं नहीं गुजरांवाला नहीं है. टाइम नहीं है हमारे पास. That's sad because last time रेहान भाई ने encourage किया था गुजरावाला के लोगों को मुझे मैसेज करने के लिए. A lot of you reached out. Thanks a lot. But the They sweetest did? message was, yeah, they did. The sweetest message was from Muneeb Ahmed Qureshi. Muneeb, thanks a lot. Loved your message, and thank you so much for watching the show really regularly. We're very grateful. What did Muneeb say? I think मैं सिर्फ ये कहूँगा कि
प्रिडिक्शन इन्होंने नहीं देनी। रेहान, मुझे तुम अगर चैंपियंस ट्रॉफी की जवाब प्रेडिक्शन लो ना यार, ये क्या बायलैटरल सीरीज, वो उनके रबाडा शबाडा खेल भी नहीं रहे अबे थे। चैंपियंस ट्रॉफी को अभी टाइम है, ठहर नहीं जाना नहीं, थोड़ी देर। तुम अभी लो प्रेडिक्शन, इफ्स एंड मुझे बट्स बताओ प्रेडिक्शन, मैं रेडी हूँ इफ्स एंड क्या, बट्स। मुझे बता दो। इफ मुझे फखर जमान, फ्लैट वो प्रिडिक्शन चाहिए। मैं बता फ्लैट दूंगा, इफ फखर जमान इज इन द टीम पाकिस्तान विल रीच द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। यार ये फखर वाली बात अब ये लेट नहीं ये हो गई? इफ आ ये गया है ना, बस ये फ्लैट तो नहीं है, बस मुझे तो नहीं पता इस्तेहाल है। ये क्या बात ये कर रहे हो बस तुम? गुजर ये नहीं गई? नहीं, मैं तो मैं फखर पे, फखर एजेंडा के ऊपर मैं टिल द एंड ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी रहूंगा। 3 फखर मैच गुजर जमान जाएंगे, कहेंगे फखर आ जा रहा था। देखो ये देखो इसकी डील हम बनाएंगे, तो मैं बताने लगा हूँ, ठीक है, लेट्स गो। ओके। If Fakhar Zaman and Saim Ayub open for Pakistan in the Champions Trophy, I see Pakistan minimum reaching the final of the trophy. Final में जो हो, I don't know, but Fakhar Zaman Saim Ayub की opening partnership is good enough to get Pakistan into the final of the Champions Trophy. वाह यार, ये दिस इज नॉट अ मसला। ये कि लाइक फखर जमान ने एंड में आना नहीं है, तो मतलब लाइक फिर रेहान कहेगा मेरे सर पे तो है ही नहीं ये बात। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो वो बात होगी कि वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी ना खेला तो यू नो मेसी खेले या ना खेले फिर भी अर्जेंटीना जीत जाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना। वाओ, दैट्स हाई प्रेज, दैट इज हाई प्रेज फॉर फखर। आई थिंक इसके बाद कुछ और कहना रहता ही नहीं है, मिस करो बाकी सारा कुछ। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। दिस वाज अ ग्रेट एपिसोड। आई एम हैप्पी टू बैक विद द बॉयज अगेन। आई होप you guys enjoyed it as much as we did, and we are going to drop a episode on PSL soon about how the draft process works. If you guys have any questions, have any input, let us know, and we'll hope to try addressing it. Thank you for tuning in. Make sure you like and subscribe. Bye bye.